Assalamu alaikum. Good morning, student. Today I will explain fifth chapter for standard 6, a different kind of school. The chapter deals with the way how the teaching methods are different in Miss Beam's school. In the story, the author is curious to witness the teaching method of the school about which he had heard a lot. So he visits Miss Beam's school. As he enters the school, he sees a girl with a blindfold who was being led by a young boy through the flower beds. As he walked further, he met Miss Beam, a middle-aged woman. He inquired to Miss Beam about the teaching method, to which she said that her teaching method are simple except one thing. Example, she teaches thought as thoughtfulness and kindness to others. She said that the children who studied in this school were only taught as much as was required for them to learn something new every day, which also helped them to learn how to do things. The author was quite impressed by this new method. Just then he looked out of the window and witnessed a heart-wrenching sight. He saw many children with happy faces playing in the open field, but they were not so healthy and active. According to their age, among them he saw two girls with their eyes bandaged and a girl with a crutch looking at the other children playing. Miss Beam explained that the students with the bandaged eyes have no issue with their eyes and that they were all right. This was one of the teaching methods of the school to make the children know about the misfortune of life and to appreciate them, so that they would become better citizens when they grow up. In each term, every student has to be blind, deaf, lame, injured or dumb. This was a kind of game which every student has to be a part of. Miss Beam then took author to one of the bandaged girl and left him alone with her. As the author spent some time with the girl, he found that the girl appreciated others who helped her in need and decided to be a better help when her turn will come. She further said that the blind day was the hardest because the person is always worried about getting hurt or falling. After spending some time with the girl, the author realized that he has become more thoughtful than he was before. देखो बेटा, ये कहानी है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल तो आपको मालूम है, और डिफरेंट काइंड मतलब एक अलग तरीके का स्कूल है। ये एक मतलब जो पोएट है वो जो ये स्कूल में गया, ये स्कूल में जो टीचर थी वो मिस बीम थी। ऑथर बहुत क्यूरियस था कि उसने ये स्कूल के बारे में सुना था। उन्होंने जाकर है ना स्कूल की टीचर मिस बीम से पूछा कि आपकी स्कूल क्यों अलग है, सब स्कूलों से क्यों अलग है। तो मिस बीम ने बोला कि यहाँ पर हम ऐसे मतलब सिखाते हैं बच्चों को, मतलब अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। जैसे थॉटफुल है तो वो थॉटफुलनेस हो गया, काइंडनेस हो जाएगी, मतलब सिंपल तरीके से हम लोग बच्चों को है ना वो सिखाते हैं। तो ऑथर सोचने लगा कि मतलब आपका तरीका क्या है। तो ऑथर ने देखा था कि एक लड़की आँखों पर पट्टी बनी हुई है एक लड़की की, और एक लड़का उसे हाथ पकड़कर गार्डन में लेकर जा रहा है। तो ऑथर ने पूछा कि आप मतलब वो लड़की, तो मिस बीम बोले कि हमारा सिखाने का तरीका ही ये है। और है ना मतलब बच्चे लोग मतलब है ना, जैसे ऑथर ने गार्डन में देखा वहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन वो बच्चे हेल्दी नहीं थे कि जैसे हाथ पैरों में बहुत हेल्दी, लेकिन उनके फेसिस पर बहुत ग्लो था और बहुत है ना उससे खेल रहे थे बच्चे। और दो लड़कियाँ आँखों पर बैंडेज बांधी हुई थी, और एक बच्ची पैरों में मतलब उसका पैर वो था अपाहिज जैसे, तो क्रच पकड़ कर बैठी थी और सबको देख रही थी। तो मिस बीम ने कहा कि जो दो लड़कियाँ आपको बैंडेज दिख रही, आँखों पर पट्टी बांधी हुई, ब्लाइंड फोल्डेड, वो ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है, वो सही हैं लड़कियां, लेकिन बोले हमारे टीचिंग कराने का मेथड ही ऐसा है कि बच्चों को सब चीज़ आना चाहिए कि अगर बच्चा अपाहिज है, अंधा है या लंगड़ा है या जो भी है, लेकिन उसे अपने फील्ड में सक्सेस होना है, मतलब उसे मतलब अपने आप को है ना पुश करना है हर चीज़ में। तो इस वजह से हमारा स्कूल एकदम अलग तरीके का है। जैसे ब्लाइंड है तो आँखों पर पट्टी बांधकर वो महसूस करे कि अंधा कैसे महसूस करता होगा, डेफ है तो सुनने की वो,
डम है मतलब बोल नहीं सकता है, या इंजर्ड है, पैरों में तकलीफ़ है, तो कैसे चलेगा, तो इसके लिए। और है ना हर टाइप के गेम है। ऑथर ने सब देखा तो मिस बीम ने उसे बोला कि अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं बच्चों के बारे में तो मैं आपको एक बच्ची के पास छोड़ देती हूँ, मतलब आप बैठिए उसके साथ वक्त गुजारिए, वो बच्ची से सब पूछिए आप, और फिर उसके बाद आप अपना डिसीजन वो करिए। ऑथर बहुत खुश हुआ। ऑथर वो लड़की के साथ बैठकर, स्टूडेंट के साथ बैठकर काफ़ी देर उसने अपनी डिस्कस करी, उन्होंने स्टोरी और ये सब, और उन्हें बहुत अच्छा लगा ये स्कूल देखकर। मतलब उन्होंने अपने आप ही बोला कि ये तो अलग ही तरीके का स्कूल है कि जहाँ पर है ना पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मतलब डेली के उसको दिया जाता है। डेली जैसे आप एक्टिविटी, जैसे ना पढ़ाई भी है साथ में, लेकिन डेली एक्टिविटी में मतलब अगर इंसान ब्लाइंड है तो वो कैसे आगे वो करेगा, अगर डेफ है तो वो कैसे अपनी बात रखे, मतलब हर चीज़ के लिए ये मतलब ये स्टोरी है बेटा। अब देखो, सी हियर आर द क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस चैप्टर, you can copy into your book. Thank you.